back to my channel. So, here I am back after so long, and I have not studied anything from the past 2 weeks. So, I need to study now because I have my pre boards and then class 10th boards. So, I can't risk it now. So, I have to start studying now. Actually, we were having our science exhibition in school. So, for that, we were making projects and yeah, that's why I have not studied anything from like past 14 to 15 days, and now I have to study because of course I have my boards, so I need to revise everything. So yeah, let us now start this video. Also it's afternoon time and I didn't go to school today because I was not feeling well. That's why. So I'm starting my study session now. So let us start. Okay, so this vlog is of Wednesday, it means 26th of November. So as I said, मैं स्कूल नहीं गई थी, so उठ के I took a shower and ये जो bird है, ये अपनी beak से मेरी window को वापस hit कर रहा था and I thought why not to record this. So yeah, anyway, so I started to study like at around 1 or 1:30. I don't remember, but yeah. So first I started with physics and here I was reading the NCERT of the chapter magnetic effect because मैंने chapter complete कर लिया था, बस NCERT रीड करना बच गया था. ऑल्सो मैं लाइक दोपहर को पढ़ने इसलिए बैठी थी बिकॉज मैं इसके पहले शॉर्ट्स वगैरह एडिट करी थी, वॉइस ओवर एंड ऑल, एंड देन मैंने अपलोड भी किया था एक शॉर्ट्स. तो या एडिटिंग वगैरह करके हियर आई सैट डाउन टू स्टडी. ऑल्सो गाइज प्लीज इग्नोर माई फेस इन दिस क्लिप, बट या इट इज व्हाट इट इज. मैं ऐसे एंगल बहुत रेयरली शूट करती हूँ. सो आई एम डन विद माई फर्स्ट स्टडी सेशन एंड इट्स विंटर गाइज. I love winter season by the way. So yeah, never mind. Now let's move towards our नेक्स्ट स्टडी सेशन. सो या एनसीईआरटी अच्छे से रीड करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी हॉल में बिकॉज दिस इज माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे एंड यहाँ पे इस टाइम पे बहुत अच्छी धूप आती है. सो वहाँ पे बैठ के आई ड्रैंक सम वाटर एंड देन आई केम बैक टू माई रूम बिकॉज आई हैड टू स्टडी. सो हियर आई वॉज रिवाइजिंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. सो बेसिकली आई वॉज रीडिंग द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक एंड देन मैं उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रही थी साथ साथ में. सो या दिस इज हाउ आई वॉज रिवाइजिंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इस चैप्टर का रिविजन मैंने बहुत पहले किया था एंड मैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भूल गई थी. सो आई गिव इट अ रिविजन. ऑल्सो गाइज रिविजन से मुझे याद आया दैट आई हैव टेकन अ बैच फॉर माई रिविजन एंड दैट इज यू ऑल नो अभय बैच. सो या I have taken this batch because it's India's most result producing batch. Like last year All India Rank 1 was from this batch. So I'm really very excited to study from this because I'll get a chance to study again from my favorite teachers जो कि हैं दिगराज सर, प्रशांत भैया एंड शोभित भैया. सो ये बैच दोनों के लिए है, वन जिसका सिलेबस हो चुका है एंड सेकंड जिसका सिलेबस नहीं हुआ है. सो या इस बैच में 45 डेज में पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे एंड इसमें तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एंड अगर तुमने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है सो वो भी हो जाएगा, वो भी इन जस्ट 45 डेज. एंड दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of December. ऑल्सो इस बैच में तुम्हें ब्रह्मास्त्र किट भी प्रोवाइड की जाएगी एंड मेरा ब्रह्मास्त्र किट तो मेरे पास आ चुका है बिकॉज मैंने इस बैच में एनरोल कर लिया था. सो डू लेट मी नो आर यू ऑल्सो एनरोल्ड इन दिस batch or not. Also, the price of class 10th Abhay batch is 1499 rupees and I think it's great because you will get high quality live lectures and access to the recording lectures too, and you will get comprehensive notes, regular tests and regular doubt solving sessions too. So this batch is really affordable and ब्रह्मास्त्र किट के बारे में तो तुम्हें पता ही है. I have already uploaded an unboxing shots of it, so you can go and check that out. And yeah, I'm going to revise for my boards from the Abhay batch that I have taken. But उससे पहले I am trying to complete my syllabus as soon as possible. And if I talk about how much syllabus I have left, so मेरे SST में major portions बाकी है and maths and science I have like almost completed. बस 2-3 chapters मेरे अच्छे से नहीं हो रखे हैं, so I need to revise that. बाकी तो मेरा साइंस का हो चुका है एंड मैथ्स में भी मेरा सिलेबस हो चुका है. बट लास्ट में मैंने सरफेस एरिया वाला चैप्टर किया था जो कि
अच्छे से नहीं हुआ है, सो आई नीड टू डू इट अगेन। एंड इंग्लिश एंड हिंदी का मैं स्कूल के हिसाब से चल रही हूँ, एंड आईटी तो पूछे ही मत। सो या दिस वाज अ लिटिल सिलेबस अपडेट, एंड मैं सोशल साइंस का सिलेबस इज स्टिल लेफ्ट टू कंप्लीट। ऑल्सो गाइस, अभी हमारे स्कूल में चल रहा है प्रैक्टिकल वर्क बहुत सारा, सो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा साइंस का। सो बेसिकली फिजिक्स में 4 एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें 2 मेरा कंप्लीट है, एंड बायो में 2 है, एंड केमिस्ट्री में हमें 3 बनाना है। सो साइंस में हमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं प्रैक्टिकल कॉपी पे, और यू कैन सी लैब मैनुअल। एंड रिसेंटली हमारी हिंदी वाली मैम ने हमें एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करने के लिए दिया था, जो कि मैंने बना के सबमिट कर दिया है, एंड इसके बारे में आई अपलोड सेपरेट शॉर्ट्स। ऑल्सो इस बार हमें इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल बनाने मिला है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा, बट या आई नीड टू डू दैट ऑल्सो। सो या अभी तो स्कूल में सिलेबस कंप्लीशन, प्रोजेक्ट फाइल एंड प्रैक्टिकल कॉपी सबमिशन चल रहा है। एंड इस वाले व्लॉग में भी मैं वही कर रही थी। यहाँ पे आई वॉज डूइंग लाइक बायो वाला प्रैक्टिकल वर्क, एंड इसके लिए पहले मैंने एक प्रैक्टिकल कॉपी निकाली, वो थी 9th की प्रैक्टिकल कॉपी, एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं इसी में लिख लूँ या फिर कोई अलग से न्यू वाले कॉपी में। फिर मैंने देखा दैट इंडेक्स भरा हुआ था, सो मुझे एक न्यू प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इंडेक्स में वाइटनर लगाती तो वो बहुत गंदा दिखता। सो या नेवर माइंड। बायो में इन टोटल हमें 2 एक्सपेरिमेंट्स लिखने थे, एंड मैंने पहला वाला एक्सपेरिमेंट का पीडीएफ खोला, एंड हियर आई स्टार्टेड टू लाइक कॉपी डाउन। एंड इस टाइम पे प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीशन वाला काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट या नेवर माइंड। अगर ये कंप्लीट करके नहीं सबमिट किया, सो हमें इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारे स्कूल में भी ये प्रैक्टिकल कॉपी या फिर प्रैक्टिकल फाइल वाला काम चल रहा है या नहीं। मेरा तो नवंबर साइंस एग्जीबिशन एंड इन सब चीज़ों में ही चला गया। सो या ऑल्सो गाइज, एग्जीबिशन से रिलेटेड एक शॉर्ट्स मैं अपलोड करूंगी, जिसमें आई शो कि हमने स्कूल में पढ़ाई वगैरह छोड़ के एग्जीबिशन प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए थे, एंड थोड़ा बहुत आई इंट्रोड्यूस यू ऑल विद माई फ्रेंड्स, बिकॉज हमने स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लाइक इंजॉय किया था। एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम था जब हम स्कूल में रुक के प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, एंड दिस वॉज दी ओनली रीजन जिस वजह से मैंने 2 हफ्तों तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि हम लोग स्कूल में तो प्रोजेक्ट्स बनाते ही थे पूरा दिन, एंड मैं घर आके भी प्रोजेक्ट्स बनाती थी, एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनाती थी लाइक पोस्टर एंड रिमार्क्स वाली डायरी एंड ऑल। सो ये सब तुम्हें शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड इस वजह से मैं घर आके बुक तक नहीं खोलती थी पढ़ने के लिए। सो या बायो का एक एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद शाम हो चुकी थी, एंड दिस वाज द मून। एंड ये व्यू है मेरे रूम के जस्ट पीछे, अ टाइप ऑफ बालकनी बोल सकते हो उसका, जो तुमने गेट देखा होगा मेरी आगे वाली क्लिप में जब मैं फिजिक्स पढ़ रही थी। सो मेरे पीछे जो गेट था वो इसी का था, एंड वो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ऐसा ही छोटा सा, उसमें प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। मैं उसका किसी दिन टूर दूंगी। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you loved watching this one. Stay tuned for the next one. Till then, take care and bye bye.